वाटर इश्यूज के ऊपर ही है। द वाटर प्रॉब्लम्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया आर कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ both technical and political issues, primarily revolving around the Indus Water Treaty (IWT), signed in 1960. Here are some key aspects: technical issues and water distribution. The IWT allocates the eastern rivers Beas, Ravi, and Satluj to India, and the western rivers Indus, Jhelum, and Chenab to Pakistan. However, India's constructions of dams such as 330 megawatt Kishan Ganga Dam on Jhelum and the 850 megawatt hydroelectric project on Chenab has caused concern in Pakistan about water security and shortage. Climate change. The Himalayan glaciers that feed the Indus Basin are predicted to diminish, affecting water flow and increase the risk of floods and droughts. Political issues, trust and cooperation. Historical conflicts, including the Kashmir dispute, have created mistrust between the two countries, making it challenging to resolve water issues. National security. Water has become a national security concern, with both countries linking to their sovereign and territorial integrity. Diplomatic tension. India's attempts to modify the IWT have been met with resistance from Pakistan, which insists that discussions must be within treaties framework. International mediation. The World Bank, which brokered the IWT, has been involved in mediating disputes, but the treaty's effectiveness is being tested by increasing tensions between two countries. Overall, the water problems between Pakistan and India are deeply intertwined with the political and technical factors, requiring a comprehensive approach to resolve the issues and ensure water security for both nations. Keeping in view of recent wars, India's fatal defeat, it looks like that India will not be inclined to give any concession to Pakistan. Our governments in last 50 years have not built any new dam and taken care and resolved internal differences on fair distribution of available water and overcome wastage of water as well as improve situation. देखिए मेरे ख्याल में गलती जो मैं सोचता हूँ एज ए सिटीज़न कि ये हुई है हमसे, ये बड़ा ब्लंडर कहिए कि इनके ने एक कॉल के ऊपर ट्रम्प की और हमने एग्रीमेंट साइन करने के लिए एग्री कर लिया कि हम सब वोट जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। अब उन्होंने कोई कंडीशन तो बनवाई नहीं। जब वॉर को रोकने के लिए अगर कोई होता है कि आप कंडीशन बताएं, ये अगर करेंगे तो हम ये वॉर रोकते हैं। उन्होंने नहीं कहा। अगर ये कहते हैं ये पानी के लिए कर लें या हमारे कश्मीर के इशू, दो इशूज़ हैं डिस्कस करेंगे, तो क्या उन्हें फिर वो सोचते कि हम ये साइन हो या नहीं हो, और इन द मीन टाइम हम उनको और इनका तबाही मचाते रहते इसके अंदर। लेकिन उन्होंने ओवरनाइट जैसे भी कॉल आई उन्होंने सरेंडर किया कि नहीं ठीक है। अब क्या वो कहेंगे हम तो नहीं करते, फिर क्या करेंगे आप? एक्चुअली दैट गेनिंग टाइम, और उसमें क्या है कि इतना उनका नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है कि उनके तस्वर में भी नहीं था कि इतनी उनको पिटाई होगी या उनको तबाही मचेगी। अब वो यानी गर्म गुस्से में बैठे हुए कि किस तरह पाकिस्तान, उनकी क्या मजाल थी कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि हम पाकिस्तान हमें इस तरह बुरी तरह मारेगा। जब हो गई तो अब वो बदला लेने के चक्कर में नफरत हो रही है, उनकी गवर्नमेंट फॉल हो जाएगी अगर वहाँ पे लोगों में थोड़ा भी कॉमन सेंस हुआ, क्योंकि वहाँ क्या पब्लिक नहीं है, वहाँ भी वोटर्स हैं, लेकिन वो क्योंकि मुसलमानों के इस्लाम की दुश्मनी में वो सोचते हैं और करते हैं, तो वो शायद उसको फिर टॉलरेट कर ले कि ये है। लेकिन मैं नहीं समझता, मैं देख रहा हूँ कि आने वाला वक्त इससे बदतर खुदा ना करे हो, लेकिन एक इंडिया बदला ज़रूर लेगा। आप देखिएगा वो बैठेगा नहीं खामोशी से। फिर क्या करेंगे हम ट्रम्प की बात। अच्छा, हमारा जो असल दोस्त होना चाहिए मेरे नज़दीक वो है चाइना। अच्छा, चाइना को हमने एक सेकेंडरी पोजीशन दी हुई है, और जो हमारे अभी तक हम ट्रम्प हम US ट्रम्प भाई आप कर रहे हैं, ठीक है आपका रही है, लेकिन वो हमें यूज़ करते रहे हमेशा, हमने तो उन्हें यूज़ ही नहीं किया। हमारे जो कितनी जंगों में उन्होंने हमारे फौजी लड़ाए, उनसे फ़ायदा उठाया, असला बेचा, लोन पे लोन दिए चले आ रहे हैं। अब आप एक छोटी मिसाल देखें, अभी जंग हो ही रही थी, होने से एक दिन बाद फ़ौरन उन्होंने $1 बिलियन का IMF ने लोन भी दे दिया। तो
कि अब वैसे तो बड़ी कंडीशंस में देते थे, तो अब किस तरह दे दिया। इसका मतलब है हमें जाल में फंसाए जा रहे हैं और हम कमज़ोर से कमज़ोर हो जाएं, और फिर जब नहीं दे सकेंगे तो क्या करेंगे। तो मेरे समझ में नहीं आता कि हालात बड़े कशीदा और बहुत ही कम्प्लेक्स हैं। तो अब अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमाए और हमारे लीडर्स को और फ़ौज को हिम्मत और ताकत अता फरमाए, पहले से भी ज़्यादा, कि हम उसको कर सकें। शुक्रिया।